1 year Bible reading plan. Ephesians 1 chapter 15 verse से 2 chapter 1 verse से 10 verse. Isaiah 13 chapter 14 chapter. एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 वचन से 2 अध्याय के 1 से 10 वचन तक और यशायाह की भविष्यवाणी 13 अध्याय से 14 अध्याय 13 और 14 अध्याय. हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. एफिशियंस 1 चैप्टर 15 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे हम किंग्स जेम्स वर्जन में से. थैंक यू आबा फादर गॉड, हम तुझसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा हमारे शरीर प्राण आत्मा में इन वचनों को फिट एंड फिक्स कर. तेरा वचन हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आए. जिस डेस्टिनी में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है उस डेस्टिनी के अंदर होने के लिए हम इन वचनों के भेद रहस्य हमारे अंदर इकट्ठा करते जाएं. हम तुझे धन्यवाद के साथ ये समय को लाभदायी बनाने के लिए हम विनती करते हैं. नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर मेरे पिता. आमीन आमीन आमीन. एफिशियंस 1 चैप्टर 15 वर्स से पढ़ेंगे आगे किंग्स जेम्स वर्जन में से. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, for above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Chapter 2. What the Ephesians state was God's mercy in their deliverance. Though saved by grace, yet created unto good works. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे 10 वर्स तक. सेकेंड चैप्टर में जाएंगे. फर्स्ट वर्स से 10 वर्स तक पढ़ना है. एंड यू हाथ ही quickened who were dead in trespasses and sins. ये वर्स को याद रखना. ये अन्य जातियों के लिए, ये इवेंजलिज्म जो हम चैनल निकाले हैं उसके अंदर ये प्रेयर करने के लिए आपका ये रीज़न है. एंड यू हाथ he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his glory in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Hallelujah. देखो, ये सारा वचन जो है आपको मसीह में आने के अंदर जो आपके बारे में शुद्धता हो चुकी है, जो आपके बारे में कह रहा है, आपको ये बातों को मनन में रखना है। दूसरा, आपका जो भी कैरेक्टर रहेगा, जो भी आपका गिरावट रहेगा, जो भी आपकी मुश्किलें रहेगी, आपको उसको स्मरण नहीं रखना है। आप उसके पीछे पीछे अपने मन को व्याकुल नहीं करना है। ऐसे वचनों को उठाना है जो अभी हमने पढ़ा, और इसको हम अपने अंदर से बोलते रहना है, और इसके अंदर से ही हम अपने को देखना है। ओके, तो इसके कारण हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन, धोखा, दर्द, यातनाएं और पाप, मलिनता, अशुद्धता, ये सब सोच के ही अंदर से तैयार होते हैं। हमारे जीवन में इमोशंस को करप्ट करते, फीलिंग्स को करप्ट करते हैं। ओके, हार्ट करप्टेड हो जाता है, हमारी भाषाएं नेगेटिव हो जाती है। ओके, तो आप इन वचनों को आप बोलेंगे, इसी के अंदर आपका ध्यान लगाओगे, मनन के अंदर से आप इमेजिन करोगे इन वचनों को, तो आपकी सुंदरता, पवित्रता में और धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह की है, और बहुत फलवंत ऐसे रास्ते पकड़ना शुरू करेगी। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। आप इन वचनों को जब पढ़ रहे हैं तो हमेशा के लिए आपको आपके चित्त में लेकर आना है, ज़बरदस्ती। हम पढ़ेंगे हिंदी में पौलुस की प्रार्थना, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 15 वचन से आगे हम पढ़ रहे हैं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। देखो, प्रकाशन का ज्ञान और प्रकाश का आत्मा रहता है। अगर आपको प्रकाशन नहीं आते हैं तो परमेश्वर से आपने उसको मांगना है। ओके, और अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और ये एक प्रेयर पॉइंट है, चराई में हम इसको प्रेयर कर सकते हैं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसके मिरास की महिमा का धन कैसा है। देखो क्या लिखा है, तुम जान लो। यानी हमको बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी क्यों करना है? क्योंकि जान लेना है हमको। ओके, हमको इस बात से ज्ञानी हो जाना है कि हमारे बुलाहट की आशा क्या है। ओके, हमको क्यों बुलाया है परमेश्वर ने, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। इसके लिए हमको बाइबल रीडिंग करना है, इसके लिए मनन करना है, और इसके लिए हमको चराई निकालना पड़ा, ये चराई वाला चैनल निकालना पड़ा, ताकि हम इन चराई के अंदर से हम क्या करना है मसीही जीवन का, इसका लाभ उठा पाते हैं। ओके, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है,
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। 2 अध्याय का 1 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। मृत्यु से जीवन की ओर पहले वचन से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 10 वचन तक पढ़ रहे हैं। पहले वचन से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर। इसके लिए हमने इवेंजलिज्म चैनल ओपन किया क्योंकि इसके अंदर ये वचनों को लेकर हमको काम करना है। और आकाश के अंधकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ओके, न बल से न ताकत से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपको यीशु मसीह मालूम पड़ता है। ओके, ये हम नहीं। जब आपको हम बोलने के कारण अगर आपके अंदर सुधार आया है तो ये हमने नहीं बोला है, ये यीशु मसीह के उस काम करने वाले पवित्र आत्मा ने आपको कुछ कर दिया है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है, आपको सुधार लाने की ताकत दी है, कुव्वत दी है। ये हमने नहीं किया, आप हमको देखते हैं। ओके, अगर हम आपको कुछ भला काम करेंगे, अगर हम आपको, चलो मान लीजिए आप लाखोंपति है और समझो अगर हमने आपको 1000 रुपये देकर या कुछ देकर आपकी आदर की कि प्रभु यीशु का प्रेम आपको दिखाया, तो आपको लगता है मैं लाखोंपति हूँ, मुझे क्या करना है ये पैसों का। या फिर आपको कुछ खाने के लिए दिया या आपको कुछ अच्छा बर्ताव दिखाया, फ्रेंडलीनेस दिखाया, अगर आपको प्रेम दिखाया, अगर आपको आदर दिखाया, तो आपको लगता है कि मुझे क्यों इतना भाव दे रहे हैं पता नहीं। ओके, ओ मेरे पीछे क्यों पड़े हैं लोग मुझे पता नहीं। ओके, तो ये ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा आपको देता है। ओके, आप सोचेंगे कि मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इतनी ज़्यादा ये प्यार जताती है, इतना ज़्यादा वो परमेश्वर करती है। माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो आपको दिखा रहा है कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको कुछ देना चाहता है, वो आपका आदर रखता है, वो आपको पहचानता है। हालेलुया। वो आपने बातें नहीं की है तो भी वो आपको पहचानता है। ये सीक्रेट वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। हालेलुया। ओके, तो इसकी वजह से ये दान है परमेश्वर का। ये कोई हमारी कुव्वत नहीं है कि हमारा हृदय या हमारा कुछ तो ताकत या हमारे पीढ़ी के कुछ बहुत अच्छे काम, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर खुद अपने आप को आप तक पहुंचाता है हमारे अंदर से।
हालेलुया, समझिए इस बात को। ओके, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जब हम पाप को धिक्कारते हैं, नफरत करते हैं, ओके, जब हम पाप को धकेल देते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो वो दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं। ओके, क्योंकि जब हम देते हैं, परमेश्वर का दान है, वो हम कुछ कर रहे होते हैं। ओके, परमेश्वर हम में से आपके लिए कुछ कर रहा होता है। अगर रिवर्स में, अगर रिस्पॉन्स में हमको लताड़ा जाए, कुचला जाए, या हमारे ऊपर कोई पाप के हथियार डाले जाए, पाप के दुष्ट काम डाले जाए, तो फिर हमको उससे बचने के लिए हमको उन आत्माओं को डांटना पड़ता है। हालेलुया, हम उन आत्माओं को धकेल देते हैं, ओके, गिरा देते हैं, ओके, हाथापाई करते हैं उन आत्माओं के साथ और भगा देते हैं उनको। तो उसका हमारे साथ फाइटिंग हो रहा होता है। इसके लिए हम चीखते हैं, ओके, इसके लिए हम आवाज करते, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इसके लिए हम डांटते हैं, ए शैतान की आत्मा, तू मेरा पीछा मत कर। हालेलुया। तो वो समय जो हमारा रहता है, वो हमारा फाइट चल रहा होता है, क्योंकि हम भले काम करने के बदले में पाप की आत्माओं का आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा होता है। ओके, तो पाप की आत्माओं के साथ जो फाइट होता है वो वॉयलेंट और एग्रेसिव में से होता है। ओके, पाप की आत्माएं तू मैं करके नहीं जाती है, ना ही विवाद करके जाती है, ना ही उसके साथ कोई अच्छा या भला काम करने से वो जाएगी। नहीं, पाप की आत्माओं को डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, ओके, आवाज चढ़ाकर उसको भगा देना पड़ता है। ओके, तो ये काम करने के लिए हमारे अंदर से हम नहीं है, वो परमेश्वर खुद उसको आज्ञा देता है, ए इस शरीर से दूर भाग जा। ओके, ए शरीर का कुछ ले मत, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यही वो वॉरफेयर प्रेयर्स है। समझ में आया? लेकिन जब किसी को हम भलाई दिखाते हैं तो वो परमेश्वर का आत्मा उसको जानता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए हम में से वो भलाई उत्पन्न करता है, उस इंसान के लिए हाथ बढ़ाता है, उस इंसान के लिए दोस्त बन जाता है उस इंसान का। ओके, उसके काम आ जाता है, उसको सहायता हो जाती है। वो इंसान सोचता होगा मैं तो करोड़पति, लाखोंपति और बहुत घमंड से भरा हुआ इंसान, मेरी नाक कटवाएगी क्या ये औरत, या मेरा काम खराब करेगी क्या ये लेडी, ओके, या ये आदमी, ये क्यों प्रभु प्रभु करके मुझ पर प्यार जता रहा है। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत लोगों में नामचीन इंसान हूँ, और फिर भी ये लेडी क्या मुझे प्रभु प्रभु करके अपना प्यार दिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना बच्चे हैं, ना जवान है, ना बूढ़े हैं। ओके, यहाँ पर जो आपको कांटेक्ट कर रहा है वो परमेश्वर आपको कम्युनिकेट कर रहा है। आमीन। इसके लिए जब हम पुलपिट के ऊपर से कुछ सुनते हैं, दासों का वचनों को सुनते हैं, हम कोई भी परमेश्वर के सिखाए हुए बातों को स्मरण करते हैं, कुछ भी हमारी अपनी ताकत का नहीं होता है। सब कुछ परमेश्वर हमारे लिए परोस रहा होता है। शत्रु के सामने मेज लगाया रहता है। वो कौन शत्रु? इंसान नहीं। इंसानों को हम खिलाएंगे, पिलाएंगे, आनंदित करेंगे, जश्न मनाने के लिए मजबूर कर देंगे। हालेलुया। लेकिन शत्रु वो है जो पाप की आत्माएं हैं। हालेलुया। पाप की आत्माएं पाप करवाना चाहती है मनुष्यों से। हम उसके सामने हमारे जीत का मेज चढ़ाते हैं। ओके, उस जीत में हम शामिल हो जाते हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। ओके, हम पाप के ऊपर प्रभुता करने वाली मेज को हम शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो शत्रु का मतलब इंसान नहीं, शत्रु का मतलब दुष्ट आत्माएं जो पाप कराती है, जो हमारे परमेश्वर के वरदानों को खत्म करना चाहती है, जो परमेश्वर के गुणों को खराब करना चाहती है। ओके, जो परमेश्वर लोगों को देना चाहता है उसके आड़े आना चाहती है।
ओके, वो आड़े आके हमारी बदनामी कर देती है, वो आड़े आके हमारा नाम खराब कर देती है, वो आड़े आके लोगों में हमारे बारे में गुस्सा दिला देती है, वो आड़े आके लोगों में हमारे बारे में चर्चाओं के वक्त में निंदाओं को लेकर आती है। ओके, ताकि लोगों का मन हमारे ऊपर से हट जाए और हमें दोष लगाना शुरू करेंगे वो। ओके, इसके लिए परमेश्वर का आड़े आने वाला आत्मा पाप का आत्मा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा प्रेम, दया, अनुग्रह, भलाई के कामों में ही आपको मिलेगा। कभी मसीहों के विरोध में मत जाओ, जब वो आपके लिए इतना कुछ परमेश्वर आपके लिए रखा है, आपको देना चाहता है। मसीहों का विरोध करके सबसे बड़ा लॉस आपका हो रहा है। ओके, माइंड करो इस बात को। और देखो क्या लिखा है 10 वचन में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, 8, 9, 10 वचन देखो क्या लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जब भी हमारे अंदर से भलाइयाँ देखते हैं लोग, तब वो भलाइयों का जड़ कौन है? परमेश्वर खुद है। और वो क्यों है? क्योंकि बहुत पहले से ही उसने हमारे बारे में ये सोच के रखा था। इसके लिए यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैंने तेरे लिए भली योजनाएं रखी है, तेरा भविष्य भलाइयों में देखा है, तुझे त्याग देने का विचार मुझ में नहीं है। हालेलुया। कितना प्यारा वचन आज हमको मिला है। हम नासरी यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करेंगे कि इस सच्चाई में हमको बनाए रख मेरे खुदा परमेश्वर, इससे हमें अलग होने मत दे, और यही हमारे जीवन की भले और अच्छे समय को पिता परमेश्वर मजबूत कर हमारी स्मरण में, चित्त में इसे बनाए रखना, ताकि हम हर समय असमय तेरी ताकत को प्राप्त करते हुए आगे जाए, और तुझ पर हम कभी भी मन निराश नहीं करेंगे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हम पवित्र आत्मा तुझसे विनती करते, हमें फिट एंड फिक्स कर पिता परमेश्वर। इन वचनों में हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, व्यवस्थितपन में लेकर आ। जिस डेस्टिनी में परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है उसमें हमें पहुंचा दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। धर्मी उसमें तोड़ते